Today date is 20th April 2022 and the time is 04:39 a.m. So he is the only one, Mr. Rahul Gandhi, in Indian politics. Never any media tried to judge him. We all were taking him very lightly, and he is continuously playing dumb. As I came to know that Sonia ji asked him that सत्ता जहर है, पॉलिटिक्स इज अ पॉइजन. क्या बात कर दी यार, सन ऑफ राजीव गांधी. यू थिंकिंग सो? Even in subject, he never let you know about his capability to handle the party. He was the smartest one inside the parliament. He is the smartest one. He let you all to play with him. He was giving a chance to you all. No one is, because he is alone. That's why he know how to save him. He was playing very safe, Mr. Rahul Gandhi. No political affair, no love affair, only a RSS cited case related to Sukanya and other. I don't know. Even that case was not. To punish him. Up to what level he is, none of his party member will able to understand him. Mallikarjun Kharge, other NSUI students, he was watching you all very silently. So many others inside the INC India was thinking that is a pappu, he doesn't know what and how. Arre, come on, yaar. You can see his face. Ever you watched him while he was delivering his speech inside the parliament? मैं तो बहुत पहले बोल दिया था. बेटा जिस दिन इसने अपनी असलियत दिखा दी ना तुम्हें, अरे भूसा भर देगा ये एक एक के. मामूली मत समझना चाहिए. इज अ प्लेइंग डम्प. और जो प्लेइंग डम्प होगा ना बंदा, दो तरह के बंदे बहुत खतरनाक होते हैं. वन हु इज प्लेइंग डम्प, अनदर हु इज प्लेइंग साइलेंट. जब दिखाएंगे ना अपना असली रूप, वर्ल्ड वॉर कुछ नहीं है इनके लिए. बहुत बहुत शांत और कम बात करने वाला और अपने आप को ग्रुप के अंदर भी अलग रखने वाला आदमी बहुत खतरनाक होता है. स्टैग समझते हो? कमांडो यूनिट के अंदर ना स्टैग के ऊपर बड़ी नज़र बना के रखते हैं. स्टैग है ये, लाख कोशिश कर लोगे काबू नहीं आता स्टैग. और डंप, जो डंप खेलता है ना, उससे
बेटा तुम उसे कभी जिंदगी में नहीं फंसा पाओगे और उससे उसका कुछ छीन नहीं पाओगे। इंडियन पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन सिटीजन्स हो, राहुल गांधी को अगर एज ए स्ट्रैटेजिक प्लेयर कहा जाए ना कि टिल टुडे what number he will receive out of 100, he will directly cross 94 directly. Why? I'll tell you. In career wise na, only by his one act, कई तरह के एक्ट होते हैं, मैं बताता हूँ, मुझे भी सारे नहीं पता। I'll try. First, unknown. Unknown है, ठीक है। By only one act, playing dumb, he crossed his age 50, near to 50 or 50, सिर्फ एक एक्ट से यहाँ तक पहुंचा है राहुल गांधी। अननोन तो उसने शुरू ही नहीं किया है, ठीक है। सेकंड, अननोन हो गया ना, साइलेंट। ये एक्टिंग फीचर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं ये। अननोन प्लेयर, साइलेंट प्लेयर। 3, इंटेलिजेंट तो अलग है। इनविजिबल, फोर, डम्ब। डम्ब बोलते, DUMB, डम्ब, इडियट। डम्ब क्या लो, इडियट क्या लो। क्योंकि डम्प कह लो, इडियट कह लो, फूल कह लो, ये एक ऐसा प्लेयर होता है, इसके आगे सब खत्म। इंटेलिजेंट को लाके खड़ा कर दो डम्प के आगे, इडियट और फूल के आगे, उसका रोल खत्म। वो फर्क नहीं पड़ेगा क्या, कहते बेवकूफ है, कहता ना भैंस के आगे बीन बजाना, वो वाली बात हो जाती है। मोदी पार्लियामेंट में कुछ बोल ले, इसे फर्क नहीं पड़ता, इसे बैठा अपना आराम से बोला वो कुछ। पार्लियामेंट के 540 पॉलिटिशियन, इंक्लूड योर लोकसभा स्पीकर ऑल्सो, फेल बिकॉज वन dumb idiot and fool is sitting inside the parliament who never bother himself about what the hell you are doing inside the parliament because he is not on the seat. Why should he care? Wonderful player. Wonderful player. And why should he show his capability? While thousands and thousands of cameras of media is around him, still he is playing dumb, idiot and fool.
Means whatever is your strategy and whatever you are citing inside the parliament, its citing is not SI, CI. Citing की स्पेलिंग अलग है यहाँ पे. Whatever you are saying and telling to anyone and whatever you are throwing in a speech on Congress and on him is playing fool and idiot and dumb. I don't know what you okay. You are on chair now. Whatever you are saying, do it and face the consequences. Why should he? Whatever is happening inside the INC India, like Abhishek Manu Singhvi's case, you don't care. You are doing then you face it because he is not on chair. सबसे खतरनाक प्लेयर होता है ये. बड़े से बड़ा धुरंधर भी इसके आगे लाके खड़ा कर दोगे ना, ये कहेगा अरे मुझे क्या लेना देना यार. सिंपल है. वो कोई कह दे ना समझ नहीं आया, ले 5 घंटे का स्पीच था यार, तो क्या कह रहे थे ये. 33% ने बजा दी भाई तुम्हारी. नहीं वैसे नहीं कह रहा हूं. मतलब भारतीय जनता पार्टी वाले लेके आए अपनी पार्टी के एक सुपीरियर को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, और इसने मजाक बना के रख दिया पूरी पार्लियामेंट का. इसकी स्पीच सुनी है पार्लियामेंट में. ये ऐसा मजाक बनाता है ना इन सब का, ये इसके तरीके से ही मजाक बन गया आप लोगों का. सर थोड़ी सुन तो लो. हम भी कुछ कह रहे थे. तरीका देखा है, तुम्हारी सूखी मारता है दबा के, सूखी. तो समझदार आदमी होगा ना जो उसको देख रहा होगा, जो उसे ऑब्जर्व करेगा, वो समझ जाएगा इन्हें भी दबा के मार छोड़ी इनकी. भाई साहब ये बैठ के लौड़े जितने मैं गिम आगे चूत ये जितने मर्जी जेस्चर दिखा लें, वो एक बार अपनी कॉमेडी स्टाइल में स्पीच डिलीवर करके चलता बनता है ना, माँ चुदाओ ना बयान के लोड़े बेवकूफ़ों के बीच में, और क्या बनेगा आदमी. ये रियलिटी है. और क्या. He knows how to tackle the Indian parliamentarians in present time. Oh, shut up, get out. समझ में आई. ये क्या करता है ये बंदा जो है पार्लियामेंट में. हाँ ये 2-4 बातें ऐसी बोल करके चलता बनेगा ना. और क्या अगर बैन कर लो जिससे बंच ऑफ जोकर्स यार. कह रहे यार एक मैं भी सही. मतलब कांग्रेस चाहे इनको कितना भी अच्छा मंच सजा के दे दे, तो और भाई क्या सीधे अगर चूतिया ही हो तुम बैठ के लड़ो, और क्या बोलूं मैं तो रियलिटी बता रहा हूं ना. इसने ऐसा चूतिया काटा ना इसने भाई साहब इंडियन पॉलिटिशियंस का. मतलब इंडिया के अंदर एक पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, आईएनसी इंडिया के अंदर सन ऑफ श्री राजीव गांधी, who was India's top most powerful personality. His son. मिनट में खत्म कर देता है, ये मिनट में खत्म कर देता है इन सबको. जैसे तुम कहते हो ना, हाँ कह रहे तो पप्पू है तो बैठ के लौड़ा तुम्हारे अपोजिशन में बैठे, बाकी तुम्हारी चूती हो. अपनी पार्लियामेंट में अपने ही बंदे को बोलते हैं बैठे ये चूती है, ये बेवकूफ है, तुम आके लौड़ो उसी पार्लियामेंट में, तुम भी मेंबर हो.
सोचो, इंडियन पॉलिटिक्स में एक बेवकूफ भी जीत के आ सकता है, तुम सोचो ना। राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे बैठ के लौड़। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, वो इंडियन पार्लियामेंट है जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद बैठा हुआ है। उसके एक सदस्य को आप पप्पू बोल रहे हो? अब तुम ही बताओ चूतिए कौन है? तुम बताओ ना चूतिए कौन है भाई? तुम बताओ ना। फिर ये शोर मचा के कहते हैं हम राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे। बहुत बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को, बहुत ध्यान से। ये कहते हैं शोर मचा के हम राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे। समझ में आई? और खुद शोर मचा रहे होते हैं। तो चूतिया कौन हुआ? बताओ भैया, सोचने वाली बात है। आप अपने देश में अपने पार्लियामेंट के एक सदस्य को बोल रहे हो ये स्टूपिड है, बेवकूफ है, फूल है। तो he is a part of 2019 parliament. He was a part of 2014 parliament. He was a part of parliament, I think, since 2010 or something. You tell me the truth ना। इतने समय में इंडियन पार्लियामेंट में आज तक किसी ने इसकी तारीफ नहीं करी। सुनने वाली बात। वो छोड़ना, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड वगैरह कुछ मायने नहीं रखता। इसने ऐसी सूखी इनकी गांड मारी ना इंडियन पार्लियामेंट की, कसम, इसकी स्पीच देखने लायक होती है पार्लियामेंट में। यार चूतिया काटता है ना ये धर के। मोदी को जिस दिन इसने गले लगाया था मैं समझ गया, मैंने कहा भाई इसने कर दिया, इसने सत्यानाश इसका। तो सत्यानाश कर दिया था इसने। मतलब इतने अरसे में राहुल गांधी पे, सुनते रहो, भारतीय जनता पार्टी ने खुद मेरे अंदाजन इसको डिफेम करने के लिए 1000 करोड़ खर्च किया होगा, कर दिया होगा।
तो तुम चूती हो या वो चूतिया है? चूतिया कौन हुआ? चूतिया समझो, बेवकूफ कौन हुआ? तुम बेवकूफ हुए ना, वो नहीं है। उसने तो सिंस द बिगिनिंग उसने सिर्फ एक पॉइंट पिक किया, इज प्लेइंग डम। डम समझते हो? बेवकूफ प्ले कर रहे हो आप। जानते हो सर, पर्सनालिटी उसमें ये चैप्टर है, डम प्ले कर रहा, बिकॉज ही इज नॉट ऑन चेयर। क्यों अपना आईक्यू लेवल और अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा वो? नो फॉरेन पॉलिसी आइडिया, कभी जज नहीं कर पाया मैं आज तक इसकी स्पीच में कि इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। कि रूस को दोस्त मानेगा, अमेरिका को मानेगा, यूक्रेन को, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, नागपुर। कोई फाइनेंस, वो तो यार घूमने चला गया डोकलाम, एक अलग बात। वो तो चाइना के मामले में इंडियन कई पॉलिटिशियंस भी गए, कि अपनी एसपी सिक्योरिटी में चलता ही गया, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसका डोकलाम जाना, तो मेरा जो काम था मैंने किया। मैंने 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 रियलिटी छुपा दी इसकी। आज बता रहा हूँ ना मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये अपनी एसपीजी सिक्योरिटी के साथ चलता है। ये डोकलाम तक पहुंच गया, तो ले गया सिक्योरिटी डोकलाम में, दे दिया बंदे इसने अपने, हमने बात छुपा दी। दिमागदार है। भारत में सबसे सबसे हाई एंड सिक्योरिटी चलती है इसकी, मेरे बाद। मतलब मैं जब चाहूँ इससे मिल सकता हूँ, ये नहीं मिल सकता मुझसे। मतलब मेरे से मिलने आएगा तो इसकी 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 भी तलाशी हो जाएगी। और ये पहुंच गया डोकलाम अपनी एसपीजी सिक्योरिटी लेके। इसकी एसपीजी सिक्योरिटी मतलब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसपीजी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो, स्काई ब्लू, तुम्हारा क्या कहते हैं, स्वाट, एनएसजी, मार्कोज, पैरा एसएफ, तुम्हारा क्या कहते हैं, कम से कम 25 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप के लोग। एसपी सिक्योरिटी ये होती है। पैसा अलग गया होगा, इसके साथ चला होगा। मतलब अगर ये इंडियन बॉर्डर तक गया तो कम से कम ये 5 लाख करोड़ रुपए लेके गया होगा। रूट क्लियर दे दिया इसने डोकलाम तक का। इंडियन आर्मी वाले मेरे और इसके रूट से लेकर, मेरे रूट से सामान जाता है भागलपुर तक, और गुवाहाटी तक की टिकट पे। मैंने ली थी गुवाहाटी की टिकट, ली थी एक बार। आज भी चाइनीज बॉर्डर पे इंडियन आर्मी तक सामान इसकी एसपीजी सिक्योरिटी का जाता है। बाबा जी का घंटा पता तुम्हें? समझ में आई? इसने रूट क्लियर दिया है, इसने रूट क्लियर दिया तुम्हारा इंडियन आर्मी को दिल्ली से डोकलाम तक। दिल्ली से डोकलाम तक रूट क्लियर दिया इसने अपनी एसपीजी सिक्योरिटी के साथ, राहुल गांधी ने। और एसपीजी सिक्योरिटी को एक बार रूट मिल जाए ना कहीं पे, छोड़ते नहीं कभी जिंदगी में। मैं एसपीजी सिक्योरिटी वाले भी बजा देता हूँ, मेरी टीम के बंदे। दिल्ली से डोकलाम, जिसपे इतनी बहस चल रही थी, राहुल गांधी ने अपनी एसपीजी सिक्योरिटी का रूट दे दिया। बेवकूफ समझ रहे तुम चूती हो। जाओ भैया जाओ।
मैं तो इसको जब पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया मैं गोल्डन बॉय है ये, काम पूरा कर देगा ये। ऐसा इसको जो है डोकलाम तक लेके जाओ। ये मुझे फॉलो करता है, इसे पता था ये सब गुवाहाटी तक जाना है इसको। ये निकल गया डोकलाम। हाँ ठीक है, हमने बात दबा दी। इंडियन आर्मी को रूट क्लियर मिल गया वाया बिहार। अगर ये बंदा पीओके बॉर्डर पहुंच गया ना, इंडियन आर्मी माँ चोद देगी पीओके की, मैं बता रहा हूं तुम्हें। एसपीजी सिक्योरिटी तुम्हें पता ही क्या खाली करा देंगे पीओके। इतनी भयंकर सिक्योरिटी में चलता है ये राहुल गांधी। कांग्रेसी चूत ये अभिषेक मनु सिंह भी जितना उड़ रहा है ना, एसपी हम लोग कुछ कहते नहीं, हम तो हंसते। मेरी एसपीजी सिक्योरिटी चलती है इसके साथ, मैंने दी हुई है सिक्योरिटी इसको। ये अगर इसका कॉन्वॉय इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बॉर्डर तक भी पहुंच गया, घूमते हुए भी चला गया ना, इंडियन आर्मी वाले माँ चोद देंगे पीओके की। समझ में आई? इसे तुम मामूली आदमी समझ रहे हो। मोदी लौड़ा भोसड़ी का गांड में लात और मारेंगे मोदी के तो। मोदी है क्या? 5 भाई हैं, ये इकलौता है। 5 भाई है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, लौड़े की सिक्योरिटी नहीं है उसकी, एसपीजी की कुछ नहीं है उसकी सिक्योरिटी, वैसे ही गार्ड मिलेंगे उसको। मैंने चेंज करी थी अभी दोबारा इसकी एसपीजी सिक्योरिटी। इसे कहते हैं असली दिमागदार आदमी। इसने किया काम बढ़िया, बिना प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी। बेस्ट पॉलिटिशियन है इंडिया में, बेस्ट। मैंने कहा था ना ये बाजू चढ़ा के ऊपर चलता है। कभी देखा तुमने इसे? मैंने ही बताया तुम्हें, बाजू चढ़ा के चलो। अरे बैंड चोट दे वैसे की है तो पता नहीं है तुम्हें तरीका भी। कई बार मैंने इसको देखा था पार्लियामेंट में भी ना, और उसमें भी तो बाजू चढ़ाता रहता ऊपर। बहुत खतरनाक हो, बहुत गंदा, मतलब वैसे नहीं, बहुत खतरनाक और गंदी धमकी होती है ये बाजू चढ़ाने की। आर्मी ऑफिसर्स वगैरह अपने आप समझ के जाते होंगे कि क्या कह रहा है। और मोदी जैसे को तो बेलूर मठ और वहाँ ले जाते हैं, रांची ले जा इसको। क्या एसपी सिक्योरिटी थोड़ी है इसकी भी। कोई सा रख भी लेगा, मार भी देगा, फर्क थोड़ी पड़ता है। बहुत बहुत तगड़े खेल होते हैं, इन्हें अभी पता क्या है। हमें पता है ना खेल क्या होते हैं और कैसे खेले जाते हैं। मुझे पता है ना मेरा पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने का मतलब क्या है। इमरान खान को हवा में उछाल के गोली मार देंगे, और बाजवा को कहेंगे पीछे निकल जाए यहाँ से। जो उसने क्या दिया सुन लो। हम तो एसपीजी गार्ड पीट देते हैं पकड़ के। कुछ कहा था उसने, सुना भी नहीं। और खड़ा किस लिए बगल में करके? 10 मिनट का भी काम नहीं है। इंडियन आर्मी मिनट में पीओके खाली करने का ऑर्डर दे देगी, मिनट में। राहुल गांधी आ रहा है, पिक्चर।
इतना आसान नहीं होता भाई साहब एसपीजी सिक्योरिटी ब्रीच करना, तभी तो पीटते हैं एसपीजी वालों को। अगर राहुल नए नए पाकिस्तान क्यों जाएगा राहुल गांधी? अगर इंडो पाक बॉर्डर राहुल गांधी नहीं, बाघा बॉर्डर एक अलग चीज़ है। किसी ऐसे बॉर्डर के नज़दीक पहुंच गया ना जहां से पोस्ट नंबर दिखता हो, पोस्ट पिलर पे, वो उधर का पाकिस्तान खाली है, दोबारा पॉपुलेशन ही नहीं आने देंगे। वर्ल्ड में सबसे महंगी एसपीजी सिक्योरिटी है इसकी, राहुल गांधी की। सबसे महंगी, सबसे खतरनाक, सबसे वल्गर। समझ में आई? जो इसके साथ रहते हैं उन्हें पता है ना, मैं गया हुआ हूँ, मुझे मालूम है। हम मन में कभी ये लेके चलते ही नहीं है कोई पॉलिटिशियन जा रहा है तो इस पर हमला कर दें। नहीं, राहुल गांधी के मामले में अरविंद केजरीवाल गलती कर रहा था, तभी तो कूटने का मूड में था मैं उसे। मैं मारूंगा बैंड के लोड़ों को पब्लिक में ही, दोबारा इसने गलती करी तो। मैं शुरू से रहा हूँ राहुल गांधी का एसपी, शुरू से वहाँ से थोड़ी। इसको तो इतना समझाया हमने, है एक बंदा एसपीजी गार्ड है, मतलब यार तू खामखा दिमाग लगा रहा है, कौन मोदी और क्या है वो, छोड़ना 5 साल बाद कोई और आएगा, दिमाग मत लगा। मेरे बहन ने मार मूर देंगे, कोई फायदा नहीं। अगर दोबारा इसने मंत्र मंत्र चलाए ना, मैंने ठोक दिया। मोदी मोदी आते के साथ अपने तंत्र मंत्र दिखा रहा राहुल गांधी में, मेरे बहन के लड़े स्टंटबाजी हमसे देख तेरा क्या करते हैं। अब भुगतता रहा केस जिंदगी भर, इसका घर परिवार सब ब्लैक लिस्ट मोदी का सब। अब समझो बंदा कौन है जिसकी सिक्योरिटी में चलता हूँ मैं, राहुल गांधी है। समझ गए? बहुत पहले उठाई, जब मैं न्यूज़पेपर डालता था ना तभी उठा ली थी मैंने इसकी सिक्योरिटी, पहले दिन के घर से। तो मैं हम लोग हमारा काम थोड़ी है इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, हम तो कहते हैं। हम नहीं बोलते कि मतलब कि जो मर्जी करो जैसे मर्जी, हम तो ये कहते हैं एसपीजी गार्ड्स को, बेटा गलती करी ना मारूंगा बहुत। हाँ मैं गया था ना सोनिया जी से मिलने, तो सारी जमा तलाशी हो जाती है, मोबाइल फ़ोन, चाबी, लॉकेट, सब कुछ सब रखवा लेते हैं, बाद में ले लो। पर्स वगैरह सब, पर्स, आई कार्ड, वाई कार्ड सब रखवा लेते हैं। अभी दोबारा चेंज हुई, फिर उस दिन बनारस में चेंज हुई सिक्योरिटी, अब एक बार और चेंज हुई। मैं कहा तो रहा हूँ बेस्ट प्लेयर है ये, बेस्ट है। मोदी को पूछता कौन है? तो राहुल गांधी सब मिलने नहीं देते जल्दी किसी को, अलाउड ही नहीं है। क्या नाम था इसका, एक और तो था वो दिग्विजय सिंह, अपने आप को ज़्यादा बड़ा प्लेयर समझ रहा।
हमने एक दो बार इसे हिंट दिया था, हमने कहा ये ले पकड़, ये तेरी जिंदगी है। हमसे पंगा लेगा, खोल देंगे बेटा मिनट में, मिनट में। मैं नहीं हूँ और किसी वजह से आज बता दिया मैंने भारतीय जनता पार्टी वालों को, गलती मत करना दोबारा, वरना देख ले फिर। एक पॉलिटिकल पार्टी लपेटना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ऐसा पैक करूंगा ना बेटा, कोई बाप नहीं पैकिंग खोल पाएगा तुम्हारी। कर दिया पैक, अब क्या। खुलवा ले जब पैकिंग जिस मर्जी से। तो हमें क्या लेना था, कांग्रेस हो चाहे कुछ हो, हमें क्या, हम इन मामलों में पड़ते ही नहीं। आते के साथ राहुल गांधी पे दिमाग लगा रहा था मोदी। मैं कहा, अच्छा। नहीं, खाली करना पड़ेगा पाकिस्तान को। होगा कोई पीस मार का अपना क्या। इसको हिंट दिया था हमने 2-3 बार मोदी को, वो तो जानता नहीं है भी हमारे को। ऐसी मार मारेंगे ना बेटा, जिंदगी भर याद रखेगा। दोबारा गलती मत करियो अमित शाह, तो देख ले फिर। ये संसद में बोल, मंच पे बोल, किसी को गलत ऑर्डर मत दे दियो, नहीं तो ठीक बात नहीं होगी। और ये पुलिस प्रशासन ये वो मत समझिए हमारे को। ब्राउन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट और येलो बेल्ट और ये बेल्ट और वो बेल्ट, उतनी बेल्टें पड़ेगी तेरे। जहाँ से आया ना वहीं घुसा देंगे दोबारा। तभी तो मैंने मोदी को जो है ना गुजरात का सीएम बनाने का ऑर्डर दे दिया, और क्या बोलता, इसका मतलब यही था बेटा, जहाँ से आया ना वहीं घुसा दूंगा। इनको हमने 100 बार समझाया था भारतीय जनता पार्टी वालों को, देखो भैया, मंच पे तुम जो भी बोलो वो अलग बात है, सुपर वॉइस में जो है ना कोई गलत ऑर्डर मत दे देना। पार्लियामेंट में कह रहा है एसपीजी सिक्योरिटी हटाने का ऑर्डर दे रहा राहुल गांधी का, अच्छा, और हम हट जाएंगे। बेटा इतनी मार पड़ेगी ना तुझे, समझ गया।
दोबारा करेगा अमित शाह? हाँ भाई मोहन भागवत, बनाओ तेरा कांग्रेस मुक्त है। तूने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी खत्म, तुम्हारे लिए कांग्रेस नहीं है, यही नियम है। फिर वही बात है, तुम खत्म हो गए ना, अब तुम्हें कहाँ दिखेगी कांग्रेस, पार्लियामेंट से बाहर तुम, अब तुम्हारे लिए कांग्रेस नहीं है, बात खत्म है।